मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं अब्दुल अज़ीज़ दाग नोबल न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक व मिली काउंसिल बेंगलुरु की जानिब से आज 18 दिसंबर को यौम हुकूक़ अक़लियत मनाया गया। आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। The Constitution has given the minorities the full rights, the rights to preach, the rights to practice one's religion. इन लोगों ने प्लान बनाया था इसका बिल पास करने के लिए, इनके एमएलए को बुलाया गया, बुला के बिल पास किया गया अंधेरे में के पास। ये बहुत ही आम बात है देखने के लिए देश में आज कि जो है राइट्स प्रॉपर तौर पे दिए नहीं जा रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका मैडम फादर फ्रांसिस डसूजा फॉर बीइंग हियर विद अस, थैंक यू सर। एंड और congratulate All India Milli Council Karnataka for organizing this event and to reflect upon the minority rights in India. When we say minority, what do we understand by minority? We have heard of this word so often. When we say minority, it refers to the 5 religions in India: the Muslims, Christians, Jain, Buddhists and Parsis. As you know, there are different types of minorities. We have religious minorities, as it was mentioned in the introduction. Minorities mostly refer to the Muslims, Christians and other religious minorities. Over the years, the name minorities has become prominent because of the branch. The Article 14 to 13, the Article 14 to the Constitution provides the special treatment for the minorities so that they can become लॉयरिंग इन इंडिया। हम बहुत ही जो है आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वह आज की इस इजलास का कीनोट एड्रेस It's really very kind and very generous invitation. I'm very happy to be here for you to speak a little bit about things which concern us in common. I think my little friend just mentioned a little earlier that one of the books which is our common holy book is really the Constitution of India, which I have before me. And I want to try and tell you in the little time that we have with us is why do we consider this book our, if you want to use the language of holy book, our holy book. What are the values which this book has which makes us uphold it as something which applies to all Indians? In some ways, we learn from the minority communities of this country, or in many ways, we learn from the minority communities of this country. In particular, I am referring to the protests around the anti-CAA legislation. If you look at these protests, one way of looking at the religious community as alien to this particular country. That's one way of doing it. But the other, I think the more important, the deeper way of viewing it is to say that the protests against the CAA legislation was really not about defending the values of the Constitution. And that is why, as far as those protests were concerned, everybody came together. Let me speak a little bit about what are the values of the Constitution and why do we defend it so much. Again, when we say the Constitution, it's not just a book which I'm holding in my hand. These are not what we call dry, lifeless words. But these are words which are born in struggle. By which I mean that why we defend the Indian Constitution is because it is a book
which is a product of a certain kind of a struggle, which is the Indian freedom struggle. The Constitution has underlying it, there was a range of thinkers and people who struggled for freedom in this country. Let me tell you what मिली कौंसिल के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे याद किया और यहाँ पर आज बुलाया है। मंच पर बैठे हुए सभी हजरतगण और मेरे सामने भाइयों और बहनों, आप सबका जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख सकते हो भाई भाई भाइयों, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ब्रेक लगा दिया गया है और बहुत ही शॉर्ट में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हमारे माइनॉरिटीज के जो बेनिफिट्स हैं उसका हम बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहे, बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहे। गवर्नमेंट जब इतना अपने को सहूलियत देती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हम उसके लिए पूरी तरह से मदद करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। आप यही क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखिए, कहां से कहां तक चले जाते हैं। हमारे कम्युनिटी में चाहे आप मुस्लिम हो, जैन हो, फारसी हो, हम बहुत पीछे हैं। सरकार पहली क्लास से लगा के 10वीं तक पूरी फीस देती है, स्कॉलरशिप देती है, और 10वीं पास होने के बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए भी फीस और स्कॉलरशिप देती है, और उसके बाद डिग्री के लिए पूरा पैसा देती है। और जो बच्चे फॉरेन पढ़ना जाना चाहते हैं, ओवरसीज स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, वो हमारे सरकार जो देती है वो सिर्फ कर्नाटक में है, सारे हिंदुस्तान में ये बेनिफिट कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ 20 लाख रुपए जो बच्चा अगर फॉरेन पढ़ने जाता है तो सरकार उसको 20 लाख रुपए, और वो नॉन रिफंडेबल है, वापस देने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं देखा हूं पहले बहुत से बच्चे छोटा मोटा काम करते थे, पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, लेकिन आज की डेट में मैं देखता हूं क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि लड़कियां बहुत पढ़ रही है, और जो लड़कियां पढ़ती है तो उन लड़कियों को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो मुश्किल होती है। तो उनके माँ बाप को समझ आइए कि मेरे बच्चों को भी पढ़ाना है, मेरी बहू पढ़ी लिखी आना है, तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, और अब बच्चे सब समाज में पढ़ने लगे हैं और आगे बढ़ने लगे हैं। हम लोग बड़ी चीज देखते हैं सर, आप में हमारे में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने सबको इंसान बनाया है और हमारे में कोई डिफरेंशिएट नहीं है। कोई क्रिश्चियन है तो उसमें भी अलग अलग कम्युनिटी होती है, कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, सीएसआई है, जैसे मुस्लिम में भी सिख, शिया, सुन्नी अलग अलग कैस्ट है। हमारे जैन में भी दिगंबर से, स्वतंबर से, तो ये क्या है, सब अलग अलग है, लेकिन हम सब लोग एक हैं। हमारे में आप भगवान को जानते हैं, अल्लाह को जानते हैं, खड़ोल को जानते हैं, स्वामी को जानते हैं, लेकिन सब एक है, हम सब एक ही भगवान के बंदे हैं। मेरे भाइयों, हमें जब भी कोई तकलीफ होती है, हमारे घर में कोई जब बीमार पड़ जाता है और अगर उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद अगर उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर बोलता है भाई एक बॉटल ब्लड लेके आओ, जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं, क्या हम ब्लड बैंक में पूछते हैं क्या ये मुसलमान का खून है, ये हिंदू का है, ये क्रिश्चियन का है? जो भी ब्लड वहां मिलता है हम लेके आ जाते हैं और हमारे पेशेंट को देते हैं। तो हमारे में कोई डिफरेंस नहीं, हमारा सबका खून एक है। बस ये तो क्या है कि अपने दिल के अंदर एक तसल्ली के लिए अल्लाह ने अलग अलग मजहब को बना दिया है, और आप अपना मजहब मानते हैं, हम हमारा मानते हैं, क्रिश्चियन का मानते हैं। इस प्रकार से हर लोग अपने अपने मजहब को फॉलो करते हैं। फर्क कुछ नहीं है, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर जाते हैं, कोई चर्च जाता है, फर्क कुछ नहीं है आप में हमारे में। हमारे सामने
आगा साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे स्पीकर है, मैं उनके सामने क्या बताऊं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, वो घंटों घंटों बात कर सकते हैं और समाज की बहुत सेवा करते हैं। आपने भी कई बार ऐसे प्रोग्राम किए हैं और मैंने इनके प्रोग्राम भी अटेंड किए हूँ और ऐसे प्रोग्राम जो चीजें सीखी मैं ऐसे ही एक कलकत्ता के मीडिया ग्रुप एरिया से, और उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करी, लिटरेचर पढ़ा, फिर मीडिया पढ़ा, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, लॉ पढ़ रहे हैं, थोड़ा यूएन के साथ काम किया, थोड़ा दिल्ली में हर्ष मंदिर और ये 2 IAS ऑफिसर्स का जो गैंग ऊपर लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश की, उस पर काम करने की कोशिश की। तो जब मैं 2008 में मैं दिल्ली में था क्लोडिमल कॉलेज में, और बटला हाउस में ही रहता था जब बटला, उस टाइम एहसास हुआ कि पिछले 20 साल में हमारे ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगा कि मुसलमान जो है आतंकवादी। इस तरह के इल्जाम जब लगते हैं तो वो सदियां निकल जाती हैं उसका बोझ उठाने, और ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं लगा, पंजाबियों के ऊपर लगा कि भाई वो करें, क्रिश्चियंस के ऊपर लगा कि ये कन्वर्जन करते हैं, सारे चर्चेस को तोड़ा, और आदिवासियों पे सबसे बड़ा बोझ उनकी अपनी जमीन और अपना मिनरल्स, जिसको सबको चाहिए। और इस सब की एक ही नीड, जैसे अरविंद कह रहे कि हम सब कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज, और अब जो लोग हैं, जो रुख है, जो इसीलिए हम गांधी को याद भी कर रहे हैं, इसीलिए हम संविधान को बात कर रहे हैं। संविधान की कॉपी टेबल पर रखिए, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ? क्योंकि पूरे स्टेट के आइडिया को बदल दिया, एक मेजोरिटेरियन स्टेट बनाने, इसीलिए हम सारे माइनॉरिटीज पे अलग अलग बोझ लगा दिया गया। तो और सब लोगों ने अलग अलग किस्म से काम किया। जैसे आप देखें कि जो आतंकवाद का जो इल्जाम लगा, तो बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म से उसको डिफेंड करना, पैसे जोड़ना, लगाना, करना, इतना बड़ा कितने पैसे खर्चा हुए होंगे पूरे इंडिया में। आप ये सोचिए, सिर्फ इनको बेगुनाह लोगों को सिर्फ डिफेंड करना, ये तो कौमी रिसोर्स है जो पढ़ाई में जा सकता था, कहीं और जा सकता था, सारा ज़कात उसमें चला गया। तो हमने सोचा कि अच्छा, इधर से ऊपर से क्या किया कि पॉलिसी चैलेंज भी था, यूएपीए, टाडा, कोटा को जो लगाया गया, उसमें बेसिकली ये कहा गया भैया आतंकवाद और ये जो है वो बाबरी मस्जिद हुई और गुजरात राइट हुआ, तो इसके बेसिस आप सारी चार्जशीट हमने निकाल दी। हर चार्जशीट का एक ही रीजन है, मोटिव, कि ये 2 चीज हुई इनके खिलाफ और इसके बेसिस पे षड्यंत्र है, और कम से कम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आज उर्दू में करूं, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो चकवाल पाकिस्तान के रहने वाले थे, और जब तक वो जीवित थे जनवरी 20 तक, वो डेली सलार भी यहाँ की पढ़ते थे, क्योंकि वो 45 के आए हुए थे यहाँ पर। रही बात आज माइनॉरिटीज राइट्स डे के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और बहुत ही जो पहले स्पीकर्स थे उन्होंने एट्रॉसिटीज के बारे में बात की, जो हम सब ने सहा है। अगर हम सब सह रहे हैं या बेटर प्लेस में हैं, वो हमारे दादा परदादाओं की वजह से है। उन्होंने ज़्यादा मुश्किल समय देखे हमसे। उन्होंने वो समय देखा जब देश 2 हिस्सों में बटा था। कितने ही हमारे रिश्तेदार शायद खो गए, जिनका अता पता भी नहीं है आज। पर अगर हम बात करें आज राइट्स के बारे में, जैसे माननीय महेंद्र जैन जी माइनॉरिटीज में मेंबर थे, और वो कहते कि राइट्स और स्कीम्स बहुत है, और है भी, हम एफर्ट नहीं लगाते उसको लेने में। बहुत बार हमारी कमी यहाँ है। पहले अगर हम 300-400 साल पहले की बात करें तो लोग जंग लड़ते थे, तब तलवार की ताकत की बहुत ज़रूरत थी। आज ताकत चाहिए, जैसे साहब बैठे हैं who's working legally on this, जो लीगली काम कर रहे हैं, जैसे नायर जी भी है, वो कह रहे हैं कि वी नीड टू बी अवेयर। पहली बात अवेयरनेस। अगर हम अपने घरों में देखें कि हमारे आगे जो जनरेशन है, बेशक आपके बच्चे हों या हमारे एज के या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो,
उनकी पढ़ाई आपसे बेहतर होनी चाहिए और कि वो सही पढ़ाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे कहा गया कि कम से कम प्री यूनिवर्सिटी या डिग्री तो लेना ही चाहिए। आज आप देख लो, अगर इंडिया में मेरे ख्याल से 12% के आसपास लोग 12वीं तक पढ़ते हैं एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन की मात्रा है 3 से 4% लोग जो कोई मास्टर्स या कोई पीजी डिग्री करते हैं। डॉक्टरेट तो भूल ही जाए, वो शायद गिनती में आ भी नहीं पाएंगे। 10-12% में से माइनॉरिटी क्या पढ़ रहा है। हम थैंकफुल है क्रिश्चियन कम्युनिटी के, यही बात कि इन पर नाम आता है कि कन्वर्जन। मैं एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे किसी ने तो नहीं पूछा, मैं 13 साल वहां पढ़ा हूँ। फिर मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। मेरी फादर्स के साथ इतनी अच्छी वहां पर मेरा राब्ता कायम हुआ है कि वो कहते हैं आप अपना कल्चर दर्शाए। मैं मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ जो सिख ट्रेडिशन के पार्ट है, तो वो ये कभी किसी ने हमको ये नहीं बताया कि आप ये करो, आप ये, वो कहते हैं कि शो व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट इज यूनिक टू योरसेल्फ। क्या आप लेके आए हैं, व्हाट इज यूनिक अबाउट योर कल्चर एंड ट्रेडिशन। और बात तालीम याफ्ता बनाया जाएगा और उसके साथ साथ हमें जरूरत है कि हम अपने हुकूक के बारे में जानकारी हासिल करें। हमें उलझाया जाता है, लिंचिंग की जाती है, टेररिस्ट कहा जाता है, जैसा कि आपने उसकी तारीफ को सुना। टेररिस्ट का जो लफ्ज है, सबसे पहले ये मुसलमानों पर या जो माइनॉरिटीज पर नहीं लगा था, बल्कि हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट अक्सर एक तबके से ताल्लुक रखता था और ताल्लुक रखता है, जिसने फादर ऑफ द नेशन का कत्ल किया। उसके बाद में तो कहते हैं कि इसने अपना हक अदा किया, अपने एजेंडे को बचाने के लिए, अपनी सोच को बचाने के लिए, अपनी रिवायत को बचाने के लिए। उसके अंदर इश्तियाल पैदा हुआ और उसने एक ऐसी हस्ती को खत्म कर दिया जिसने नेशन को बनाने की कोशिश की थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश की थी और जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत, बल्कि यूं कहिए कि उसने ब्रिटिश के ऊपर इतना जोर डाला था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश को या अंग्रेजों को दो चीजों से, दो शख्सियतों से उनको खौफ था, एक टीपू शहीद से और दूसरा गांधी से, कि गांधी की खामोशी और इसकी मस्तिहतकोशी हमें तबाह कर देगी, ये वो सोचते हुए उन्होंने इस बात की कोशिश की थी और अक्सरियत के तबके से उन्होंने इसको उठाया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज के इस ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक व मिली काउंसिल बेंगलुरु के जलसे में माइनॉरिटीज़ के तमाम नुमाइंदे शरीक रहे और मिली काउंसिल की जानिब से एक मेमोरेंडम पढ़कर सुनाया गया और यह मेमोरेंडम हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा।